Assalamu alaikum. This is my fourth and last lecture in which we will learn protein sequence analysis. After completing this lab, you will be able to use prod param web tool for computing various physiochemical properties of a protein. These properties include amino acid and atomic composition, molecular weight, theoretical pi, grand average of hydropathicity, aliphatic, and stability index. To start this lab, you should have a protein sequence. I already downloaded protein sequence of CYP11B2 gene. You can also get protein sequence from NCBI or UniProt. So now please open prod param, go to Google search engine and type there prod param in the search box. Here you can see first link that is relevant to the prod param, a tool, a web-based tool which will be used in today's lab. So please click this link. While you will be performing this lab, this link may be on the second or third position. So please click prod param tool XPassy link. This is the home page of prod param. So please, to start this lab work, paste here the protein sequence you have obtained from NCBI और UniProt. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आज की लैब के लिए I already downloaded a protein sequence of a gene. So let me get that protein sequence from my computer. When I copied here the protein sequence and click the compute parameters button, you will see next page having or showing physiochemical properties computed by the prod param. So firstly, this page is showing protein sequence. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोटीन सीक्वेंस को यहाँ पे नंबर किया गया है. अमीनो एसिड्स को प्रोटीन सीक्वेंस में 10, 20, 30, 40, यानी ये प्रोटीन में जो अमीनो एसिड की लेंथ है उसको इन चंक्स में एक किस्म का आपको बता रहा है. अच्छा, दिस इज वेरी सिंपल. गो टू द computed physiochemical properties of the sequence. First one is number of amino acids. As you can see here, this is the length of protein sequence. Then there is a molecular weight that is 57,513. ये molecular weight
आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी एक किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं। तो उन तमाम अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर मैस और वेट होता है उसको सम करके यहाँ पे दिखाया गया है। देन देर इज अ थ्योरेटिकल पीआई दैट इज 9.75। तो ये पीआई कौन सी पीआई होती है? व्हाट डज इट मीन बाय द isoelectric point? PI stands for isoelectric point of a protein is defined as the pH at which the net charge of a protein molecule is 0। यानी यहाँ पे ये जो पॉइंट है थ्योरेटिकल पीआई, इस पॉइंट पे किसी भी प्रोटीन का जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। What does it mean by proteins are positively charged at a pH? Proteins are positively charged at a pH below this pI and negatively charged at a pH above this pI। यानी इस पॉइंट से बिलो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी और अबव होगी उसकी पीएच वैल्यू। तो व्हाट डज इट मीन बाय कि प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज्ड है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड कंपोजिशन। ठीक है, आप इसको अलहदा से CSV फॉर्मेट में भी गेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक फॉर्मेट है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फॉर शेयरिंग डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे वो अमीनो एसिड की कंपोजिशन बताई गई है जो कि आपने प्रोटीन प्रोवाइड की है या करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे एलानिन, आर्जिनिन, ये उनकी वैल्यूज परसेंटेज में बताई गई है, ये वाली जो एंड वाला कॉलम है, और जो मिड वाला कॉलम है उसमें इसका नंबर बताया गया है कि एलानिन A 40 टाइम्स आया है प्रोटीन में और किस परसेंटेज में है? 8% में। आर्जिनिन और 39 टाइम्स अपीयर हुआ है या मौजूद है, वो उसकी परसेंटेज कितनी बनती है? 7.8 एंड सो ऑन। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल पैरामीटर टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड रेजिड्यूज। ये ASP एंड ग्लूटामिक एसिड, ASP प्लस ग्लू, ये नेगेटिवली चार्ज्ड रेजिड्यूज होते हैं किसी भी प्रोटीन में। तो इनका एक नंबर दिया गया है दैट इज 44। यानी ये दोनों जो मॉलिक्यूल है या अमीनो एसिड है आपने जो प्रोटीन प्रोट पैरम को दिया उसमें ये 45 टाइम्स अपीयर हो रहे हैं। आप इसको ऊपर जो अमीनो एसिड कंपोजिशन है उसमें आप काउंट कर सकते हैं। यानी एस्पार्टिक एसिड ASP, एस्पार्टिक एसिड ASP, यहाँ पे ये आया है 14 टाइम्स एंड देन ग्लूटामिक एसिड GLU वो अपीयर हुआ है 30 टाइम्स। ये तो 30 प्लस 14 इज इक्वल टू 44। इसी तरह ही जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं आर्जिनिन एंड लाइसिन, इसको आप देखें ये 58 टाइम्स आए हैं। तो इनको आप ऊपर टेबल में फॉर वेरिफिकेशन देख सकते हैं कि ये 58 टाइम्स अपीयर हुए हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो एटॉमिक कंपोजिशन का है। आप देख रहे हैं एक जो प्रोटीन होती है उसमें हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, देन सल्फर एंड समटाइम्स फास्फोरस एटम्स होते हैं।
किसी भी प्रोटीन में। तो इस प्रोटीन में जो हमने प्रॉड पैरम को प्रोवाइड की है उसमें सी कार्बन 2608 टाइम्स, हाइड्रोजन 4094 टाइम्स, एंड देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये उनका नंबर दिया हुआ ये वाला एंड वाला जो कॉलम है। ये मीन कि टोटल जो इनका ये CHNOS ये वाले एटम प्रोटीन में आपके अक्र हुए हैं उनका ये नंबर है। तो इसका फार्मूला उसने ये एक फार्मूला बनाने का तरीकाकार है। आप किसी भी प्रोटीन की जो एटॉमिक कंपोजिशन है वो एक आप फार्मूला की फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो इस तरह बन जाएगा। वही जो नंबर आपको थर्ड कॉलम में नज़र आ रहा है उसको C और फिर H का जो है उसको H के साथ और जो N का है N के साथ लिख दिया तो उसका फार्मूला बन गया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ये टोटल उसने निकाला कि CHNOS हाउ मेनी टाइम्स combinedly they have occurred in the protein, तो वो ये बनता है 8150। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। व्हाट डज मीन बाय extinction coefficients? This is a property characteristic that determines how strongly a species absorbs or reflects radiation or light at a particular wavelength. पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कोई किसी भी प्रोटीन की ऑब्जॉर्ब करने की सलाहियत को, कैपेबिलिटी को हम एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट से मेजर करते हैं। इसमें आपको एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट दो तरह से दिया गया है। यहाँ पे उसने ये वेवलेंथ लिखी है 280 nm, ये एक स्टैंडर्ड है कि इस वेवलेंथ पे प्रोटीन की ऑब्जॉर्ब करने की लाइट को कितनी का सलाहियत है, कैपेबिलिटी है। तो एक आपको ये दिया गया है EXT कोएफिशिएंट, दूसरा ये है। ये वाला जो फर्स्ट वाला है 73,500, ये है अज्यूमिंग ऑल पेयर्स ऑफ सिस रेजिड्यूज फॉर्म सिस्टीन्स, यानी ये वर्किंग कंडीशन में है, फंक्शनल है, उसमें मौजूद है। और ये वाला जो कोएफिशिएंट है उसमें उसने क्या किया कि अज्यूमिंग ऑल सिस्टीन रेजिड्यूज दैट दे हैव बीन रिड्यूस्ड। तो ये इस तरह उसने दो तरह से एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट दिया है। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड हाफ लाइफ। व्हाट डज इट मीन बाय हाफ लाइफ? ये होता है कि एक जो प्रोटीन है उसका हाफ पार्ट रिप्लेस हो गया है या रिमूव हो गया है, वो जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। इट आल्सो डिस्क्राइब्स सम ओल्डर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड टर्न ओवर ऑफ द प्रोटीन्स। टर्न ओवर मीन रिप्लेस करना। किसी भी प्रोटीन को रिप्लेस करने का जो रेट होता है उसे हम टर्न ओवर कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हाफ टाइम, हाफ लाइफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी प्रोटीन का रिमूव हो जाना या प्रोटीन का हाफ प्रोटीन का रिमूव हो जाना या हाफ प्रोटीन का रिप्लेस हो जाना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एस्टिमेटेड लाइफ इज 30 इन केस ऑफ मैमेलियन in vitro, greater than 20 hours yeast in vivo, greater than 10 hours in case of E. coli in vivo। यानी ये हाफ लाइफ इस प्रोटीन का वेरियस ऑर्गेनिज्म में दिया गया हुआ है। यानी हाफ टाइम जो दिया हुआ है 30 आवर्स, ग्रेटर देन 20 आवर्स, ग्रेटर देन 10 आवर्स, ये वेरियस ऑर्गेनिजम्स का उसने दिया है इसी प्रोटीन का जो आपने प्रोवाइड की है। Then there is instability index. This index is a measure of proteins used to determine whether it will be stable in a test tube। यानी ये स्टेबिलिटी शो करता है प्रोटीन की
If index is less than 40, then it is stable, and if it is greater, then it is not stable. In our case, stability index is 48.11. What does it mean? It mean अनस्टेबल है। जैसे मैंने बताया, अगर ये इंडेक्स 40 से लेस होगा तो हम कहेंगे प्रोटीन स्टेबल है, 40 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ये स्टेबल नहीं है। 40 से लेस स्टेबल, 40 या 40 से ज़्यादा अनस्टेबल। तो हमारे केस में इनस्टेबिलिटी इंडेक्स 48.11 है, तो ये इसलिए उन्होंने शो किया हुआ है दिस क्लासिफाइज द प्रोटीन एज अनस्टेबल। नेक्स्ट है एलिफैटिक इंडेक्स, दैट इज 95.38। एलिफैटिक इंडेक्स shows relative volume of a protein occupied by its aliphatic side chains, which is also called as aliphatic index. Aliphatic index plays a role in protein stability. With a high aliphatic index, proteins are more stable, and with low value proteins will be less stable. यानी एलिफैटिक इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा हम उतना ही कहेंगे प्रोटीन थर्मली स्टेबल है, कम होगा तो हम कहेंगे प्रोटीन इज नॉट थर्मली स्टेबल। मीन अगर ये एलिफैटिक इंडेक्स जितना ज़्यादा हाई होगा प्रोटीन उतनी ही ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगी, जितना लेस होगा तो प्रोटीन उतनी ही थर्मली लेस स्टेबल होगी। मीन यहाँ पे अगर वैल्यू होती 35 पॉइंट समथिंग तो प्रोटीन लेस स्टेबल, अब 95 मोर स्टेबल, 105 फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ तो वो और स्टेबल। देन है ग्रैंड एवरेज ऑफ हाइड्रोपैथिसिटी, ग्रेवी। The Gravy number of a protein is a measure of its hydrophobicity or hydrophilicity. एक हाइड्रोफोबिसिटी होती है टर्म, एक है हाइड्रोफिलिसिटी। हाइड्रोफोबिसिटी मीन ऐसी प्रोटीन जो वाटर में रहना पसंद नहीं करती, एंड हाइड्रोफिलिसिटी मीन कि प्रोटीन वाटर में रहना पसंद करती है, वाटर लविंग प्रोटीन है। तो ये दोनों टर्म्स इसमें ग्रेवी नंबर में आ जाती हैं, रादर दैन कि हम इनको अलग-अलग डिस्क्राइब करते, एक ही टर्म में यानी ग्रेवी में ये डिस्क्राइब की गई हैं। द टू मेजर्स आर कंबाइंड इन अ हाइड्रोपैथी स्केल और हाइड्रोपैथी इंडेक्स। हाइड्रोपैथी वैल्यूज रेंज फ्रॉम -2 to +2। तो एक हाइड्रोफोबिक प्रोटीन की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी तो वो प्रोटीन उतनी ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगी, माइनस में होगी तो उतनी ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगी। यहाँ पे हमारे केस में क्या वैल्यू आई है, -0.148, यानी माइनस में आई है, तो इट मीन्स ये वाली प्रोटीन हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग प्रोटीन है।